ये बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोजमर्रा की जितनी दुआएं हैं जो हम लोगों को भी याद नहीं है, वो सारी दुआएं आप पूछ सकते हैं। आप जो दुआएं आप इनसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू आप बताइए, खाना खाने की दुआ बताइए। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतुल्लाह। आईना देखने की दुआ। आईना देखने की दुआ अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलकी। अल्हम्दुलिल्लाह। दूध पीने की दुआ सुनाइए। दूध पीने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतम। दूध पीने की दुआ ना बारक लना फीही व जितना मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अज़ान के बाद की दुआ सुनाइए। अज़ान के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलाति क़ाइमा आति मुहम्मदन वसीलता वल फज़ीला व दरजता रफ़िया इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। आपको कितनी हदीस याद है? 40। 35 नंबर की हदीस सुनाइए। हदीस नंबर 35 सूरुल मुमिनु शिफाउल तजम्मा मुमिन का झूठा शफा। 40 नंबर का हदीस सुनाइए। हदीस नंबर 40 सबाबुल मुमिनु फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र तजम्मा मुमिन को बुरा कहना फिस्क है और उसको नाक मार डालना कुफ्र है। 25 नंबर वाली हदीस सुनाइए। हदीस नंबर 25 हदीस नंबर 20 सुनाइए। हदीस नंबर 20 इत्तक़ी मवाज़ियत इत्तक़ी दावतल मज़लूम तजाओ मज़लूम के हाय से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने बच्चों ने जो अपनी याददाश्त का मुजाहिरा किया, यकीनी तौर पर ये छोटा बच्चा हमारे असातिज़ा किराम की मेहनत, लगन, जद्दोजहद साफ साफ झलक रही है। अब आइए इसके बाद अब एक अजीज़म हम्माद बाबू भलुका, हम्माद बाबू भलुका को हम आवाज देते हैं कि वो मुख्तसर सी अंग्रेजी में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। I have just recited a whole surah before you. This is it. The translation of this surah also says that Allah is one, Allah is selfless, He belongs to no one. There is no father, no son and no consort. Isn't it a fact that when we see the starry sky, the wide earth, the bottomless sea, the high mountains and the flowing rivers, we naturally think that someone is a creator, someone who has created all these things. Then we go a step further and think that night comes, day departs, hedges, evening comes. The system of the universe is running according to the rules. There is no disturbance from anywhere. The moon rises and sets at its own time. So it is inevitable to say that there is a ruler of this great universe who does not need anyone's help, who is independent of the whole world. He does whatever he wants. There is no one to stop it. Because if there is no one to stop it, the system of the world would run in such a good way. If there were any other deity besides Allah in both of them, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. That means the earth and the sky, the both of them would be torn apart. If a country cannot have two kings, made president of any institution. If not, then how can there be many rulers of this universe? Dear friends, this prestigious assembly of ours can run many rulers. People will not say that they are not stupid. What if you take it? It is surprising for those people who believe that there are many rulers of this universe. Some have curbed but the doctrine of Father, Son and Holy Spirit, and some make thousands of goddesses and gods into idols. But what a pity, people hesitate to call them stupid. Gentlemen, it is possible that some mistakes were made during the speech. Due to this despicable mistake, I am also human being like others. So it is not surprising that I mistakes. I request you to inform me that I have made mistake, what things have been said wrongly, so that I will do the same in the future. I would end my speech by saying a few things to them. माशाल्लाह। हिंदी में तकरीर करने के लिए मुख्तसर मिसबाहुल हक बिजली, बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी अभी आपके सामने में एक सूरा पढ़ी है जिसका मतलब यह है कि ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, वो ना तो किसी का पिता और ना तो किसी का बेटा है, वे अद्भुत है। क्या ये सच नहीं कि जब हम तारों से भरे आकाश, चौड़ी सपाट धरती, विशाल महासागरों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर ये विचार हमारे मन में खुद ही आ जाता है कि कोई है जिसने इन्हें बनाया, और जिसने इन्हें बनाया है फिर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि रात आती है, दिन जाता है, सुबह होती है और शाम आती है, और दुनिया की व्यवस्था नियम के अनुसार चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। सूरज और चांद अपने समय पर उगते और अपने समय पर डूबते हैं, उसे कोई सहयोग की जरूरत नहीं। जो सारे संसार से स्वतंत्र है वह किसी का उपकार नहीं, वह जो चाहता है वही करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। यदि अगर उसे कोई रोकने वाला होता तो संसार की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती। यदि इस दुनिया में अल्लाह के अलावा अगर कोई दूसरा पूजा के लायक होता तो वे दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए होते। जब किसी देश में दो राजा नहीं हो सकते, जब किसी संस्था में कई राष्ट्रपति नहीं होते, तो भला इस संसार के कई शासक कैसे हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि ये माननीय सभा दो अध्यक्षों को चुन ले तो क्या ये सभा चल सकती है? लोग हमें बेवकूफ तो नहीं कहेंगे, ये उनके लिए आश्चर्य की बात है जो मानते हैं कि इस दुनिया में हजारों देवी देवताओं रहते हैं और उन्हीं देवी देवताओं के बदौलत ये संसार चल रहा है। मैं इन्हीं कुछ बातों पर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।